Hello students, today I am discuss of the ionic bond. Okay students, last lectures are attains of the all students knowing our types of chemical bonds depending upon the interatomic bond and intermolecular bond. Interatomic bonds also divided from ionic bond, covalent bond, coordinate bond, and metallic bond. Okay, students. Now starts first ionic bond. What is the ionic bond? Friends of the ionic bond depends upon the metal and non-metal electron loses or electron gains depends upon the ionic bond. Okay, students. Now the ionic bonds of turn condition in metal and non-metal, metal and non-metal. Metal tendency of loses of electron, electron lose करता है और ये gain of electron, okay, gain of electron, it loses of electron, metal tendency of the loses of electron. So complete transfer of electron, complete transfer of electron in metal and non-metal tendency to postulates of the result from electrostatic force positive and negative ions. Okay students, now metals are the tendency of the positive and non-metal are tendency of the negative. For example of the sodium chloride, sodium are electron representatives are 281 and chlorine are presence of the electron 287. Okay students, one electron or the sodium loses of the transfer of the chlorine, one electron are add of chlorine because the 7 electron present in the chlorine and 1 electron add of the stable condition. This is systematic of 1 electron loses are representatives of positive charge and 1 electron add of negative charge. Positive charge and negative charge. Okay students, when the positive and negative charge are binded by the electrostatic force. Okay students, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अटैच हो जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जो है सोडियम, बिकॉज द सोडियम टर्म्स एंड कंडीशन 2H and chlorine terms and condition 2H8. Okay, the stable condition of the sodium and stable condition of the chlorine, but sodium are isolated gaseous state. Okay, chlorine has the gaseous state, so gaseous state not stable from the solid state. Okay students, सोडियम एंड क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर देता है और क्लोरीन उसको क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, तब वो ये इसके स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। स्टेबल कंडीशन, ये भी स्टेबल, जब 288 आ जाता है तो ये भी स्टेबल हो जाता है, 28 हो जाता है तो ये नेटवर्क की ब्रॉड कंडीशन। ओके, सो देखिए सोडियम एंड क्लोरीन, अब सोडियम के पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये एक फोर्स होता है जिसके द्वारा ये ऑलरेडी यहाँ पर बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, okay, electrostatic force are binded of the positive ion and negative ion, the bond form as the result from electrostatic attraction between positive or negative charge is called ionic bond or electrovalent bond, electrovalent
वैलेंट electrovalent bond. Okay, students. Ionic bonds and the name of the electrovalent bond. ठीक है, क्वेश्चन ये आया कि पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इसके पास हो गया इलेक्ट्रॉन 2h। ओके, वन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया सोडियम। बट क्लोरीन जो है ये भी एक स्टेबल कंडीशन में आ गया 288। ओके, तो जब 288 ये हो गया, 28 ये हो गया, तो अब ये क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बॉन्ड बना रहा है। ओके, क्योंकि स्टेबल हो गया, तो स्टेबल होने के बाद इसको आगे रिएक्शन नहीं करना चाहिए या किसी फोर्स से नहीं जुड़ना चाहिए। बट यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ये है सोडियम, ये किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में। क्लोरीन भी किस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट ऑफ द आइसोलेटेड। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो गैसियस स्टेट में जब कोई भी एलिमेंट्स रहता है तो वो स्टेबल कंडीशन नहीं होता। अब जब ये यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जब बन जाते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है NaCl। अब NaCl ऐसे क्या होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो गैसियस स्टेट इज नॉट stable. What solid state is very stable for the gaseous state। इसलिए सोडियम और क्लोरीन इस स्टेट्स में के बाद सॉलिड स्टेट बनाते हैं और इनके बीच एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो आयनिक बॉन्ड मोर स्टेबल देन कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसलिए कि यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड हो जाता है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड वो बहुत स्टेबल होता है, यानी मोर स्टेबल होता है कोवैलेंट बॉन्ड से। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जनरली ये कोई बॉन्ड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि NaCl ऐसे नहीं लिखा जाता। ओके, तो क्या होता है, डायरेक्ट आप लिख देते हैं NaCl because the electrostatic force of the well pointed for the sodium and chlorine, so it is called the electrostatic force। For another example of the कैल्शियम, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ये क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है, ये अट्रैक्शन फोर्स जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इसमें जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, बाकी की इसकी डेफिनेशन शेयर कर देंगे, इसमें बहुत सिंपल है। द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, द टर्म ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है दो तरीके से। ये क्वेश्चन ये स्टेबल कंडीशन होने के बाद भी तो सब बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हमने आपको बता दिया ये सॉलिड फॉर्म होने के लिए गैसियस फॉर्म रहता है, ये सॉलिड फॉर्म होने के लिए यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की अपेक्षा। ओके, इसी में एक टर्म आता है बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे हमको पता चल जाए, स्ट्रक्चर कैसे है, सिंपल है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है। बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको, लुईस एक साइंटिस्ट थे, आप जानते होंगे, एसिड बेस का उन्होंने बहुत अच्छे से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटर का एसिड बेस का टर्म दिया था। और यहाँ पर जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर डॉट, इसीलिए नाम इसका पड़ गया डॉट। तो यहाँ पर डॉट कैसे फॉर्म होता है आपको हम बता रहे हैं, कुछ नहीं है, सेम कंडीशन वही है। सोडियम है, जैसे ये सोडियम, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट होगा उसको हम डॉट के द्वारा या इलेक्ट्रॉन के द्वारा शो कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो वहां पर वो क्या हो जाता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है। द लुईस फॉस्फेट आर एक्टिव स्टेबल ऑक्टेट व्हेन द लिंक्ड बाय द केमिकल बॉन्ड, किसी भी केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर ये लुईस डॉट क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन के पास 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर लिथियम की बात करते हैं उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्लोरीन की बात करते हैं, आउटर मोस्ट सेल में उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, पेयरिंग में रखने के बाद आप ऐसे कर देंगे तो ये ऑलरेडी हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं,
oxygen का to got 6 electron outermost and present in the oxygen. So it got structure of the oxygen this way. So the difference condition of the sodium are any so 5 electron. So it called the 5 electron represented of the nitrogen. Okay, so this is called the Lewis dot structure. According to Koshal-Lewis of the chemical bonding, the attraction of the following facts. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर होता है, ये देखिए सोडियम हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन है, कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं, इसमें बहुत एग्जांपल तुरंत समझ में आ जाता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, देखिए ठीक है, ये ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन जो ये पॉजिटिव वाला है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाता है। ये यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन से यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर शो कर देते हैं। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड करेंगे तो मैग्नीशियम आप जानते हैं पॉली होता है, यहाँ पर +2 हो जाता है बेटा, क्लोराइड 2 है तो Cl2 हो जाएगा, यहाँ पर Cl के लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर लग इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड, ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड। यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। ओके, सिंपल एकदम लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी आगे चल के बहुत जितने भी स्ट्रक्चर हैं सब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू द्वारा आपको पढ़ना है। तो ये अभी आपको आगे चल के आ जाएगा, फॉर्मल चार्ट वगैरह हम बताएंगे तो उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हो जाएंगे उसमें आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम शो कर देंगे, वही है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद इसमें एक टर्म आता है अनिक पॉइंट के थ्रू जो हम समझते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी ओके, इलेक्ट्रोवैलेंसी बहुत से बच्चे हमेशा बोलने लगते हैं कि सर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ऑफ द number of electron lost gain electron is called the electrovalency, but electrovalency are not possible for negative form. okay, यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी भी निगेटिव फॉर्म में नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म होता है। ठीक है, किसी का भी हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, चाहे सल्फर का हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है चाहे ये क्या करेगा, गेन कर देगा और लूज। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर रहा है, अगर मान लो ऐड करेगा तो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन और लूज इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेड ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि आज लूज कर रहा है तो उसके पास पॉजिटिव हो जाएगा और गेन कर रहा है तो वहां पर निगेटिव हो जाएगा। नो, बिकॉज द इलेक्ट्रोवैलेंसी आर ओनली पॉजिटिव फॉर्म। ओके, ये कंडीशन में एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी है, एकदम सिंपल सी बात। कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और गेन करेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप पीरियोडिक टेबल के थ्रू चलते हैं तो पीरियोडिक टेबल मान लेते हैं हमारा ग्रुप फर्स्ट है। ठीक है, ग्रुप 1 में अगर आप देखते हैं तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी आप देख सकते हैं ग्रुप 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके स्टूडेंट, इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्या होगी यहाँ पर 1 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। सो इट इज कॉल्ड द ग्रुप फर्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंसी इज 1। ठीक है, 1 प्लस ऑलरेडी लिखने की जरूरत नहीं, वो प्लस रहेगा ही। ऑक्सीडेशन स्टेट में हम प्लस यहाँ पर लिख देते हैं, बट इसी तरह सेम टू सेम हो जाएगा ग्रुप सेकंड में बेटा। तो ग्रुप सेकंड की बात करते हैं, ग्रुप सेकंड में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर बेरिलियम वगैरह हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, ग्रुप सेकंड में आते हैं। ठीक है, कैल्शियम होगा, ये भी क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब ग्रुप फर्स्ट के बाद, ग्रुप सेकंड के बाद हम डायरेक्ट चलते हैं ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 ओके,
ग्रुप 3 to 12 जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, तो उसको अभी हम बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। ग्रुप 13, और ग्रुप 13 के जो भी मेंबर है, ग्रुप 13 के मेंबर में जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, जो भी आपने अभी तो पढ़ा अच्छे से, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। अब देखिए है तो ऑलरेडी ये नॉन मेटल जैसा, नॉन मेटल है, बट यहाँ पर ये क्या करता है, जो भी है इलेक्ट्रॉन ये एल्युमिनियम है बेटा, जैसे सिंपल आप निकाल के देख लेंगे, जैसे एल्युमिनियम 13 है तो 13 क्या होगा, 283 होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज कर देगा, यहाँ पर इसके पास इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है। ग्रुप 14 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसमें आयनिक बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करते हैं और ना ही ये लूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में आप इसमें यानी ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करते, ठीक है। ग्रुप 14 आर एलिमेंट्स आर नॉट फॉर्म्स ऑफ द आयनिक बॉन्ड, ये कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम ग्रुप 15 की बात करते हैं, तो ग्रुप 15 में आप आएंगे तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन वगैरह जो आते हैं, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। अब ये देखिए यहाँ पर जैसे आप इसमें निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, नाइट्रोजन के पास 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ओके। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनकी सब की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3, -3 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, -3, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द ओनली इलेक्ट्रोवैलेंसी। सेम सिचुएशन ऑफ द 16, अगर ग्रुप 16 की बात करें, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन जो भी होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर। अब ऑक्सीजन, सल्फर का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 नहीं, बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन, सो 2 इलेक्ट्रॉन आर गेन, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑक्सीजन फैमिली आर 2। सेम सिचुएशन ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, और इसकी वैलेंसी होगी 1, because the one loses of electron, so one electron, because the 7 are outermost electron present is 7 electron, so not loses for the 7 electron if the 1 electron are gained, so electrovalency of 1। बहुत सिंपल सा है ये इलेक्ट्रोवैलेंसी। नोट कर लीजिए आप लोग, करते भी चलिए इसको। ओके, हाँ जनरल सी बात, अब हमने बताया था आपको ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 13 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, उसमें वेरिएबल वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। सिंपल सी बात है, अगर डी ब्लॉक है, ओके, डी ब्लॉक का ग्रुप जो हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है और ग्रुप 12 तक जाता है, ओके, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जाता है। बाद में उसका सब ग्रुप जो है आप देखे थे कि यहाँ से फर्स्ट बी, शुरुआत में जो हो जाए थर्ड बी, fourth B, fifth B, sixth B, seventh B, and 8 also divided into 3 types. Okay, तो स्कैडमियम टू फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। स्कैडमियम टू जेडन जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें जो भी पाई जाती है वैलेंसी वो कैसी होती है, वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। Variables means, for example, of iron. Iron is the 2 valency, +2 and +3.
ये इसको बहुत अच्छे से बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका टर्म होगा, ये सारी चीजें हम थोड़ा सा इसमें जल्द से आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो आपका आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा इलेक्ट्रोवैलेंसी की जो डेफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विंडोजेस एंड गेन इलेक्ट्रॉन चार्जेस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ओनली पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, अभी वो आएगा, जैसे अभी कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ाएंगे तो वहां पर कोवैलेंसी आ जाएगी, है ना। तो उसको फिर अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आता जाएगा। ओके, वन टर्म और है आपको ऑक्टेट रूल, जो कि आप एक बार मैं बता भी चुका हूँ आपको, फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ओके, ये नोट कर लिया करिए पॉज करके आप। ऑक्टेट रूल, ठीक है, ऑक्टेट रूल। कोशल एंड लुईस 1916 में एक डेवलप किया था। कोशल एंड अकॉर्डिंग टू कोशल एंड लुईस 1916 डेवलप ऑफ इंपॉर्टेंट थ्योरी केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम। ओके, केमिकल कॉम्बिनेशन की एक थ्योरी दी थी उन्होंने, केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन between atom known as, between atom known as electronic theory of chemical bonding, electronic theory of, electronic theory of chemical bonding. Okay, electronic theory, according to this atom can combine, either transfer valence electron from another, gain or losing. Okay, ये या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लूजिंग और गेन। Losses are gained by the valence sharing of valence electron in order have octet their valences, their valence shell or valence shell are represented of the n electrons of the outermost shell electron present in the, okay, outermost shell electron present in the, because the sodium are 281, one are the one electron of the valence shell presence of the electrons in octet, their valence electron order has two octet rule, losing or gaining. What is called the different structure or the octet rule represented of the structure of valence shell present. For example, for H2O, H2O ऑक्टेट में स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख चुके हैं। ऑक्सीजन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, यहाँ पर H2 है, एक H इलेक्ट्रॉन कितना होता है H में, H एक इलेक्ट्रॉन के लिए H में होगा। ये यहाँ पर वैलेंस शेल के लिए आप ऐसे स्ट्रक्चर शो कर देंगे, वैलेंस शेल के लिए ये। ओके, ये देखिए वैलेंस शेल का स्ट्रक्चर ड्रॉप हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, कंबाइंड विद द लूजिंग और इलेक्ट्रॉन्स होगा, जब कंबाइंड होगा तो स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा, देखिए ये। ओके, वन वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये देखिए वन वन इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर फ्री हो जाएगा, ये H है और यहाँ पर ऑक्सीजन है।
इसका ये स्ट्रक्चर लाइक दैट, आप स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म कर देंगे। देखिए ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके शो होते रहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर देखें तो यहाँ पर कंबाइन कितने हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 2 2 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ भी आपको क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट कंडीशन एंड ऑक्टेट और फॉलो, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हीलियम are duplet conditions to presence of the 2 electron and all components and all elements are represented of the 8 electron, each of the along with the carbon atoms attachments of octet electron. For example, next CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन भी ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा और क्लोरीन भी आपको फॉलो करेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये आपका CCl4 है। जनरली देखिए मैं स्ट्रक्चर आपको बना दे रहा हूँ, कार्बन 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 1 2 3 4 and chlorine outermost presence of the 7 electron। 7 इलेक्ट्रॉन आपको फॉर्म कर देना है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। अगर आप देखेंगे तो सेम उसी तरह ये क्या क्लोरीन का है, ये कार्बन का है, सेम उसी तरह स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा बेटा। और ये ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करके सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये कार्बन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, इसी में क्लोरीन अगर ऐड हो जाएगी, ये भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। ओके, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का, ये कार्बन का, ये क्लोरीन, ये कार्बन क्लोरीन। ओके, सब ये क्लोरीन है, ये सब में आप लिख भी सकते हैं। अब बाकी यहाँ पर अगर शो हो रहा है सब में 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में रहेंगे नॉन बॉन्डेड कंडीशन में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड कंडीशन में हो जाएंगे। इसको अभी डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे हम, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब कार्बन के पास बेटा ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, 2 2 2 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन है 1 2 3 4